Hmm. Hello, friends. A very warm welcome. And in the series of continuing questions, you would have seen that we have been taking up different aspects through a very, very streamlined and systematic approach. So, continuing in the ethics part, let's see what kind of new ideas and thinking process we can learn and we can apply in the answers by being very swift and fast. So, first question says that we have to write a short note on about 30 words each. That means 30 words means you must be jumbling in your mind with a lot of ideas and you must be bringing amazing phrases and a very quick and witty idea into it so that it brings a kind of a very, very exuberant and a positive approach because this is ethics. So, dedication to public service, an indicator of selfless attitude towards public service, as symbolized by Anganwadi workers as frontline health care workers during COVID 19. So, I would say, like like or one can say as seen means COVID-19 is only one of the aspects. Anganwadi workers were there before it also and afterwards it also. So that's what I would say. Only this thing is missing here. Similarly, the Safai Karamcharis serve the society irrespective of other factors, showcases their dedication in pure form. So pure form is a very good word. And again, there is a lost opportunity when we say irrespective of other factors. Instead of that, we could have seen, the Safai Karamcharis being the backbone of socio-economic structure. Something like that we could have written. So, it becomes a more imperative to bring a punch wherever possible. Otherwise, it's average and above average in a bit manner. Non-partisanship in civil service. It's a crucial aspect to allow political class and the bureaucracy to function in neutral, fair, and unbiased manner. Okay, fine. It's a broad statement, and if I am given a chance, then I would say that non-partisanship in civil service is uh, is hallmark of successful uh, implementation of governance schemes. It is hallmark of a stable relationship between the citizen and the political class. Whatever you want to write, you can bring it. So as broad as possible, if you can bring, more is a chance of getting more because whatever you are writing, if someone can write bigger and broader aspect than that, that person is going to get more marks than you. That is for sure, and that is how it is. So it's well written, but then it can be little more broader and smarter. It would thus enable fulfillment of the goal of minimum government and maximum governance till the last mile. So I think in the second aspect, again, it is a beautifully written. And first also, I would say it is fair enough, but then a little scope is always there as long as we get success. Objectivity in decision making ensures social justice and level playing field for all. Wonderfully written. Like Aadhaar is a common identity for beneficiaries of a scheme, irrespective of which class do you belong. It allowed targeted delivery of benefits, thus catering the needs of inclusive development. And this is, I think, fabulously written, very simple, very clear, very objective. Tolerance in pluralistic society symbolizes the progressive nature of society, which is crucial to uphold the aspirations of the preamble and the fraternity amongst all. I was also thinking about when wondering about constitution. So by writing the preamble, you already brought it. So this is why there would be a score in this part C. The acceptance in the practice of different cultures, food, and festivals has led to strengthening of social synthesis in India, like Hornbill Festival in Nagaland, like Pushkar Fair. Anything must be brought here. Unlike nations like UK, US, where gun culture and racial discrimination is on the rise. So again, in the end, unlike the Western culture, where such activities are less seen, or where or one can write here that even Western societies can learn a lot in this aspect from India, rather than highlighting their gun culture and racial discrimination. So that's fine. Means I always believe in taking a little safe side, but then that is also fine. Only the question arises how fast you can write. If you are writing these within the time limit, then definitely on track. Otherwise, there is need to work more. It is crucial to understand the sensitivity and the need of the hour, compassion in public service. Sensitivity and need of hour which determines the prioritization of tasks by civil servants. Compassion brings the problem-solving attitude that directly caters to outcomes like reduction in multi-dimensional poverty in the last 9 years as per Niti Aayog. I think second part is amazingly written. In the first part also, uh, because everybody is going to, I think, explain compassion first and then write. But
any aspirant who is going to write it and also illustrate at the same time is going to get more score. So compassion in public service reflected through the conduct of not only civil servants but also government deriving its aspiration from the constitution, reflected through the problem solving attitude as reflected in the decline of poverty in India, bringing 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 different section of society, like such a huge chunk is there, will give us more marks over here. So I think it's well written, but again, emotional intelligence may not be singularly associated with the emotional intelligence. It can include a broad range of personality characteristics that might predict success in professional and everyday life. Discuss. Very true. Emotional intelligence are the two eyes of civil servants. But then it is not talking about civil servant. The question is not talking about civil servants. So uh, whether it will be prudent enough to just talk about civil servants, it is, we have to see. Emotional intelligence are the two eyes of two eyes of an aware citizen, including civil servants. That would have been better. Emotional intelligence, balanced decision making capabilities, and efficient service delivery. Traditional meaning, emotional, compassionate, intelligence, foresightedness, understanding. I think well enough, but it goes beyond it. Scientific, rational decision making, empathy, attitude of not giving up despite multiple failures and dream. Very good. Armstrong Palm built 100-kilometer road without government finances. It's a good example. Positive outlook and interpretation like COVID-19. Jugaad skill as Delhi's waste to wonder park. Problem solving attitude challenge. I think wonderfully written, very objective, very simple and unique. Not many candidates who will be writing mains will be able to replicate this, that I can assure. So I think it's well written. But that, as I just said in the beginning, it could have a little more scientific, it could have a little bit more objective. Traditional forms of state-led accountability, also characterized as vertical and horizontal channels of accountability, are increasingly found to be inadequate. Very true. And a myriad of multi-stakeholders and bottom-up citizen directed approaches have come to the fore, correct? To supplement or supplant them. I think very true. Discuss with illustration. So whether you talk about Aadhaar, whether you talk about Jam Trinity, whether you talk about DigiLocker, whether you talk about MOOCs, whether you talk about social audit, whether you talk about, everything. So these all are the examples and illustrations. If one can think about, and even EVM, and even, uh, judicial discussions and cases being discussed online, everything, social technology, social media, digital technology, virtual hearings, everything will come here. So we have to understand that the state-led accountability has limited reach and participation to the upper sphere and political sector. Now this is also your view. Now this is also one view, but then as I just discussed, it could have been a little broader because we are aspiring to be part of the government system. So already if you say that this has got limited reach and participation, that means your mind is only blocked up till there. So this is the perception. So this could have been a little better open-ended beginning, which is not there. Judicial interpretation, parliamentary committees, audit reports, elections, no confidence motion, but it lacks larger people participation. And so you have taken a question in a bigger way, in a more broad, but it is abstract. Labor union strikes, Samsung labor strike to increase wages, collective uprising of Odisha tribal, social audits, citizen decentralized ways. Very true. You are talking that if not directly, then what will happen? But then I wanted you to, state is always very keen, in spite of its inefficiency, in spite of its bottlenecks, in spite of the troubles. State is always keen, but state also has its own apathy, own bottlenecks, own red tapeism. In spite of it, it is moving forward. In spite of its corruption is going down. In spite of it, liquidation and even bank, what I should say, these frauds are obviously increasing. But then what I mean to convey here is that loans are getting default and so on so forth. So you have to pick up alag area, and then you have to see ki ho kya raha hai. Yes, fraud is coming up in Ayushman Bharat also, but then at least scheme was there. Na? Scheme was there, then fraud is there. If fraud is there, then the government says now everything will be videographed. बात ही खत्म. जी सर. So you have to look for positive aspect कि भाई नाला है यहाँ तो. नाला तो है, लेकिन नाला कैसे ठीक होगा? बात ये है ना, नाला तो है, नाले के ऊपर कुछ बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड एग्जांपल्स. थिंक वेरी, but then it has become hazy. It is not able to
मूवमेंट एंड कैंपेन्स बाय एनजीओज, डिजिटल कंप्लेंट्स अमॉन उमंग ऐप, स्वच्छता ऐप। हो रहा है, प्रेशर है, सरकार पे बहुत प्रेशर है। मतलब ऑब्वियसली, क्या बोलूं मैं, गड़बड़ भी है। बिकॉज इफ यू नो द जे जूनियर इंजीनियर, वो आपके घर की तरफ पानी की पाइप अलग लगवा देगा। आप लोकल लीडर हो, तो आपने खुदवा के अपने घर तक पाइप लगवा लिया। अब क्या डीएम हर घर को देखने जाएगा, या हर हम्म। आदमी डीएम को जान लेगा? जी। तो यही है, किस्मत नहीं है कि अगर डीएम जानता है, अब तुम डीएम हो तो कुछ भला हो सकता है। हम्म। नहीं तो डीएम को बोलो मेरे घर तक पाइप, वो एक्नॉलेज ही नहीं करेगा वो। जी। हाउ यू विल एक्नॉलेज? वो तो नहीं बोलेगा, दिल्ली जल बोर्ड के जे सीईओ को बोल देगा कि भाई वहां पे तू यार अलग एक बूस्टर लगवा दे। हम्म। सीईओ बोलेगा तो अलग बूस्टर नहीं लग जाएगा, हाँ जी। लेकिन बोलेगा क्यों? हाँ। लेकिन वो नहीं भी बोल रहा है, तब भी बीच में बूस्टर तो मिसयूज हो रहे हैं। हाँ जी। पाइपलाइन तो मिसयूज हो रही है। जहां आप रहते हो वहां पे पाइपलाइन 4 हैं, हो सकता है जहां मैं रहता हूँ वहां एक भी नहीं है। हाँ जी सोहम। बस आप, क्योंकि आप सोचते हो मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा गार्डन, मेरे फूल, हो गया। हम्म। तो यही है बस लड़ाई सारी की सारी। समझे आप मेरी बात? हाँ जी। तो डेडिकेशन टू परस्यूट ऑफ सर्विस अगर हम दोबारा देखें तो स्पिरिट ऑफ सर्विस बिफोर सेल्फ अच्छी लाइन है। अल्चुरिज्म इन थिंकिंग हेल्प्स इन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, फोर्टिट्यूड, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस मोर देन प्राइवेट इंटरेस्ट। अच्छा लिखा, बढ़िया है, ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव, थोड़ा ऑब्जेक्टिव और क्लियर हो सकता था। रैट यू नो रैट होल माइनिंग का अच्छा एग्जांपल दिया, सिलकेरा टनल का, फाइन। सर्विस, सिविल सर्विस अगर हम नॉन पार्टिजनशिप की बात करें, विद प्रोफेशनलिज्म इन इट्स एटीट्यूड, ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट, एंड विवाद से विश्वास। आई थिंक सेकंड पॉइंट इज अप्रिशिएटेड, अच्छा है। ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग में अगर आते हैं तो रेशनल थिंकर अप्रोच, जस्टिस, पब्लिक सर्विस, क्वालिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन्फॉर्म चॉइस, बेटर पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ फंड। सो आइडियाज आ रहे हैं। तो आइडियाज भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में एक आइडिया एक चीज बताए, दूसरा आइडिया दूसरी चीज बताए, तीसरा आइडिया तीसरे तरह की चीज बताए, और फिर आंसर अपने आप, मतलब वो शॉर्ट नोट है वो। टॉलरेंस इन प्लूरिस्टिक सोसाइटीज बेस्ड ऑन एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस ओपिनियंस, वेरी गुड, स्टार्ट अच्छा किया, 360 रिव्यू है। मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है, इंकरेजिंग न्यू इनोवेशन आइडियाज, पीस कमिटी ड्यूरिंग। अब ये अप्रोच है, लेकिन ये लाइक यू वर राइटिंग और सम अदर फर्स्ट सेट वाज देयर, कोई ये लिख दे कि वेस्टर्न कल्चर सीख ले, तो आधा नंबर हो सकता है अलग मिल जाए। क्योंकि लड़ाई ये है कि सब कोई बीच में तो एक जैसा लिख ही सकते हैं। जी कोई सो। ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है ना, हम्म। कोई कोचिंग के नोट्स नहीं है ये। इंडिविजुअल इज गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। कंपैशन इन पब्लिक सर्विस, सो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ पब्लिक सर्विस, नॉट डेमोक्रेटिक कंपैशन इन पब्लिक सर्विस रिक्वायर्ड सेंसिटाइजेशन। सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटाइजेशन कितना है, किस हद तक का सेंसिटिविटी है, किस हद तक का सेंसिटाइजेशन है, तभी तो कंपैशन होगा। कंपैशन किसके पास था? तो आप लिख सकते थे, या कोई लिख सकता है कि कंपैशन इन पब्लिक सर्विस ट्रेसेस इट रूट्स टू एंशियंट इंडियन कल्चर लाइक बुद्धा, ही वॉज कंपैशनेट। गुरु नानक देव जी, वो तो अपने अपने उन्होंने दे दिया था ना, भेजा था उनको सामान खरीदने, उन्होंने साधु संगत को ही खिला दिया, बोला यही सबसे बेस्ट है। यानी कंपैशन फ्रॉम अशोका। जब आपके पास मौका है, आप हाथ किसी का घुमा सकते हो, आपने घुमाने की जगह आपने ब्रॉडली सोचा। आप पत्ते काट सकते हो 4 लोगों को, लेकिन आपने नहीं काटे। और क्यों नहीं काटे आपको पता है, वो कंपैशन है। जो आपको करना था वो आपने कर दिया, वो कंपैशन नहीं है। इसीलिए कंपैशनेट ग्राउंड्स, यानी दुख में आपने मरहम का काम किया है। यहाँ पे आपने भी एग्जाम्पल नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया। ओल्ड एज पेंशन टाइम से पहुंच जाए, हरासमेंट ना हो, डेस्टिट्यूट और जो वनरेबल सेक्शन है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन है जो अपने पैर, उनको कुछ मिल जाए थोड़ा टाइम से, मोटिवेशन हो जाए, उनके लिए एक अलग डेडिकेटेड विंडो हो जाए, बस उतना ही है कंपैशन। तो हैविंग सेंसिटिव अप्रोच डीलिंग विद वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये लिखने से बात नहीं बनी, बहुत लिखेंगे इसको। 4,000 लोग लिख देंगे, 12,000 लोग लिख देंगे, किसको नंबर देंगे? अब इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बात आती है, एबिलिटी टू असेस वंस अदर्स इमोशन इन ए डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। इट इज नॉट about controlling but channelizing emotions. So introductions all of you are able to create very well. It's about polishing it, it's about nitty gritty, changing it a little bit. Collective leadership, calm and composed, mindfulness, empathy towards vulnerable sections, keen listener, having diverse sense of detachment, having a sense of detachment from work,
इंटरपर्सनल स्किल्स आई थिंक ऑल आर फेयर इनफ। बहुत ज्यादा भी नहीं लिखने हैं, बहुत थोड़े भी नहीं लिखने हैं। और सब लिख रहे हैं तो प्लीज कुछ और लिखिए। These characteristics will predict the success in professional everyday life. Self-regulatory behavior mirrors our own emotions about reaction, leading and nurturing leadership to identifying aware decision making based on objective fact and situation awareness, detachment from work। तो अब ये ज्यादा है, ये भी मतलब अच्छा लिखा, लेकिन आप अगर लिखा गया है कि इन प्रोफेशनल एंड एवरीडे लाइफ, तो उसमें भी आप एक दो एग्जांपल से ही बता दीजिए। इन एवरीडे लाइफ ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हमारे इंडिया का क्या एटीट्यूड बच्चे का होता है? स्कूल जाता है, गुरु शिष्य को मानता है, वो टीचर की बात को वो चाहता है कि वो ब्लाइंडली फॉलो करे। लेकिन अगर ऐसा बहुत जगह नहीं भी हो रहा, तो वी फाइंड इट कि टीचर्स आर बीइंग अटैक्ड बाय स्टूडेंट्स। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि माइनर चिल्ड्रन को ही टीचर्स ही मोलेस्ट कर रहे हैं। यू नो सो प्रोफेशनल लाइफ का मतलब फिर आप देखिए कैसे जो है मतलब आर्म फोर्सेस कैसे हैंडल कर रही हैं। कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हो गए हैं। इवन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर को भी कोई जब सिलेक्शन हुआ था 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो साइबर फ्रॉड का नहीं पता था उसको। डिजिटल फ्रॉड तब नहीं होते थे। लेकिन आज तो हैंडल करने हैं ना। इकॉनमी इतनी ग्रो नहीं की थी, इतने हिट एंड रन केसेस नहीं थे, सड़कें ही नहीं थी, क्या हिट एंड रन करोगे? अब सड़कें आ गई तो हिट एंड रन भी दिन रात हो रहे हैं, आप मार के भाग जाते हो। when we find that even NSG commando living in a NSG complex, और say for example SPG complex, कुछ भी मान लीजिए, और अपनी वाइफ के साथ अगर वो सड़क क्रॉस कर रहे हैं और उसमें हाईवे पर से कोई गाड़ी आकर मार जाती है वाइफ को, और वाइफ नहीं रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो खुद भी उनको इंजरी हो जाती है, और है कौन, किसके साथ हुआ? जो मतलब अब्रॉड में भी कमांडो इंडिया की तरफ से ड्यूटी करके आए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो दारू पी के मत चलाओ। आपके पास बहुत पैसा है तो 12वीं में बच्चे को दारू मत पिलाओ। जरूरी नहीं है बर्थडे पार्टी रात को 12 बजे होगी, गाड़ी चलाने से ही होगी। वो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि पैसा आ गया है तो उसको संभालेंगे कैसे। या जरा जरा सी बात पे, सोशल मीडिया की बात के ऊपर आईफोन के पीछे मत भागिए, या फिर आप मर्डर मत कीजिए, या फिर आप घर को मत तोड़िए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। जो एक्सटर्नल सुपरफिशियल प्रेशर है, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक सैटरडे, ब्लैक संडे का, या जो रोज की मेगा सेल है, या जो रोज के वायरल वीडियो है, या कि रोज का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या रोज का ये बहकाना है, ये जो जो आपका सामाजिक कर्तव्य है उसको आपने छोड़ दिया, और आप शिक्षक से नेता, नेता से अभिनेता बन गए, और उससे फिर आप, ऐसे भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपनी बीवी को भी पीट रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं हाउ टू बी पंक्चुअल। तो वो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, वो सब का वो आना चाहिए सब आंसर्स। वो आ नहीं रहा। तो आप लोग को एक लेवल और आगे जाना पड़ेगा, कॉलेज और मैनेजमेंट लेवल को छोड़ के, तब आई थिंक हम सेफ होंगे। तब अगर हम एक बार में नहीं कुछ कर पाते तो हम दुखी नहीं हो सकते कि यार और पता नहीं कुछ चाहिए होगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो चाहिए। सो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बोला था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चैनल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो चेंज हुई है, बिल्कुल चेंज हुई है। लाइसेंस राज टूटा, लिबरलाइजेशन आया। उसके बाद जो है अभी तो आरटीआई, आरटीई, दुनिया भर की चीजें आई। तो इन्होंने एफिशिएंट बोला, विजन बोला, चैलेंजेस बोले, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बोला, पीआरआई, इरोडिंग पावर ट्रस्ट इन। अब इन्होंने भी कहाँ ले गए? ये ले गए कमियां गिनाने में ले गए। जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो पारंपरिक तरीके हैं अकाउंटेबिलिटी के, जो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी है, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी है। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी एक ही लेवल के ऊपर, एक लेवल का मतलब सरपंच एक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक लेवल हो गया, राशन एक लेवल हो गया, ये एक लेवल है। और वर्टिकल में क्या हो गया? डीएम, डीएम के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर गार्जियन मिनिस्टर, गार्जियन मिनिस्टर के ऊपर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर, गवर्नर के ऊपर प्रधानमंत्री। बदल गया पूरा। अब एक जगह कांड होता है, कुछ होता है, तो उसकी पूरी इको होता है पूरा, प्रधानमंत्री तक को, मतलब चाहे अगर अपोजिशन पार्टी है कुछ, वो उसको भी उठाते हैं, ये हुआ था। तो वर्टिकल आ गया पूरा का पूरा, पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अकाउंटेबिलिटी में चेंजेस आए, वो ये कहना चाह रहे हैं। मतलब उसमें बहुत सारी इनएडिक्वेसी भी रही है, लेकिन
myriad of multi-stake holders and bottom up citizen directed approaches. बॉटम अप क्या है? किसान वाला आ गया, वो मांग ही तो रहे हैं कुछ। बॉटम अप अप्रोच है, वो मांग रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले मांग रहे हैं, आंगनवाड़ी वाले मांग रहे हैं, गेस्ट टीचर मांग रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब सुपर टेक और दुनिया भर के जो ये बड़े बड़े जो ये बिल्डर्स थे, जब सारे के सारे पैसा खा गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आके किया ना पीएसयू को लाके कि भाई उनको घर दो। एक एग्जाम्पल हुआ ना वो। बात समझिए। तो अकाउंटेबिलिटी तो लानी पड़ती है। नरेश गोयल जी, जेट वेज, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ी। उनकी वो तो रही ही नहीं, धर्मपत्नी जी। तो बात समझो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जहां पे आपको सिस्टम के अंदर भी। और महादेव ऐप चल रहा है ना, ईडी ने अभी अभी जब आम आदमी के पैसे किए, 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने जब्त करके उसको बेचने की बात की है। 6,000 करोड़ कि हम जनता का पैसा विक्टिम्स को वापस दिलाएं। अब जो जो विक्टिम्स पता है, जिसका लिस्टेड है, जिसका पता है, तो उनको पैसा दिया जाएगा। ये है एक सच्चाई, होना ऐसे चाहिए। तो इन्होंने बाद में बता दिया मल्टी स्टेक होल्डर है, बॉटम अप आरटीआई हो गया, ग्राम सभा मैंडेट, तो ये वैसा हो गया, जीएस आंसर हो, एनजीओ सिविल सोसाइटी प्रिजर्विंग। तो इसमें एथिक्स वाली बातें, मतलब एथिक्स कहाँ आपने पंचतंत्र की कहानी की तरह कहाँ बता पाए कि कौवा आया, कौवा मोती खा गया, या शेर, बुढ़ा शेर बोल रहा है मेरे को कंगन नहीं चाहिए, बस आओ कंगन ले जाओ। बचपन में सबने ये कहानी पढ़ी है मेरे ख्याल से, आज वाले बच्चे को तो पता नहीं मुझे। लेकिन वो बुढ़ा शेर होता है, वो बुलाता है, तो फिर भी दो लोग पहुंच जाते हैं कंगन लेने के लिए, शेर उनको खा जाता है, तो शेर शेर ही रहेगा। कंगन नहीं दिया शेर ने। ये तो हमारे साथ रोज हो रहा है, डिजिटल फ्रॉड यही तो है, और क्या है। भाई आप किसी किसी कारण से फंसते हो, डबल हो जाएगा पैसा। लिंक आया है, लॉटरी मिली है, सबको चाहिए, सबको फ्री चाहिए, सबको ऑफर चाहिए, जैसे सब कुछ बट ही रहा है। हर ऐप बोलता है आधा लीटर पेट्रोल दूंगा। हर सेल्स, विजय सेल्स से लेके सब बोल रहे हैं कि भाई तू बस खरीद ले। तेरे घर में जो 1 साल पुरानी टीवी है, पीछे रह गया, तू कबाड़ा है, ओ एलईडी प्लस ले ले। और जो घर से नहीं निकल रहा है वो तो बस खत्म ही है। वो तो जब तक घर पे सड़क पे नहीं घूम रहे हो, यू आर फिनिश्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप समझिए ना। फिर उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी, वही है अकाउंटेबिलिटी, तो सिटीजनशिप, सिटीजन्स की है ही अकाउंटेबिलिटी। तो आप आम आदमी पार्टी का एग्जांपल ले सकते हो इसमें। भाई शुरू में जनता को बोल दिया आपने कि जो है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं, हम पार्टी ऐसे नहीं करेगी। अब पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह हो गई। अब आपने 200, अब आपको पता है कि 200 यूनिट बिजली और फ्री बस, और उसके बाद जो है फ्री पानी, जो सब जगह आ भी नहीं रहा है। अब इससे कितने लोग वोट दे देंगे? तो लेकिन पॉइंट ये है, यही विडंबना है, एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। तो आदमी इसी डर के कि यार बिजली का बिल तो नहीं देना पड़ेगा, चल दे दे वोट। तो ये भी विडंबना है ना, कि हम 1,000, 500, 500, 200, 200 रुपये, 2,000 रुपये बांट के, वो भी अपने नहीं बांटे जा रहे, टैक्स पेयर्स मनी है। वो आपकी एम्प्लॉयमेंट छीन के आपको दिया जा रहा है। तो ये सब आप लोगों को लाना चाहिए ना, ग्रे एरियाज। आप लोग क्या सेफ प्ले करते हैं, ये सब क्या मतलब, क्या किया जाए। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, लेट्स सी वन मोर आइडिया सिंबलाइजेस वंस एटीट्यूड टू मीट ईथोस। ठीक है, सौम्या पांडे, आईएएस ऑफिसर, हर मैटरनल लीव्स फॉर कोविड ड्यूटीज आ गया, देखो अलग से। संयुक्ता पाराशर, रोल इन बोडो मिलिटेंसी, ये देखिए। करम योगी ऑफिसर्स। सो मैंने बियॉन्ड कहा था, उन्होंने उनके नाम दे के कर दिया। तो भैया किया वही जिसकी हम बात कर रहे थे। गांधी जी तलिस्मन हमने पहली बार नहीं देखा, कई बार पहले भी देख चुके हैं। नॉन पार्टीसन सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स, कोर है गवर्नेंस का, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। टीएन सेशन इंटीग्रिटी, अरे भाई उनको भी तो गए कितने बरस हो गए, कोई नया ले आओ। क्या उसके बाद से कुछ है ही नहीं? एस वाई कुरैशी हैं। फिर उसके बाद जिन्होंने अयोध्या के जो ट्रस्टी थे, जो अयोध्या की जिन्होंने पूरा किया, मिश्रा सर, वो आ सकते हैं। अजीत डोभाल जी आ सकते हैं भाई, हैं। जयशंकर हैं। नॉन पार्टीजन था, नॉन पार्टीजनशिप इन सिविल सर्विस थे, तभी देखो यहाँ तक भी पहुंचे वो। तो कुछ भी लाओ, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा पॉजिटिविटी से बताइए। नोलन कमीशन की बात भी हमने पहले पढ़ी थी, मतलब पूरा कोर्स ही पूरा करा दिया हमने एक तरीके से।
Objectivity can lead to direct, indirect partisans, lack of codification of parliamentary privileges has led to chaotic instances. ठीक है, आपने थोड़ा बहुत बताया, चलिए कोई बात नहीं. Tolerance in pluralistic societies, Helen Keller. टॉलरेंस इज द बिगेस्ट आउटकम ऑफ एजुकेशन. देखो, कोट तो हम भी लिख सकते थे. कबीर ने भी बोला है, थिरुवल्लुवर ने भी बोला है, चाणक्य ने भी बोला है. टॉलरेंस इन मेक द सोसाइटी मोर ओपन. कार्ल पॉपर, टायरनी ऑफ मेजोरिटी. ऑप्शनल ले आए पूरा का पूरा उठा के. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फेटर्निटी हो गया बस. कंपैशन इन पब्लिक सर्विस, दलाई लामा. कंपैशन इज नॉट डीम्ड टू बी लग्जरी बट ए बेसिक नेसेसिटी. मैंने बुद्धा की बात बोली थी. उसके बाद जो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. कंपैशन इज नेसेसरी टू इंश्योर यूटिलिटेरियनिज्म. कितना अच्छा बात बोला, ये लाइन बहुत अच्छी है, नंबर आएंगे. Compassion is important for utilitarianism. J.S. Mill. That benefits maximum people. A civil servant compassionate enough understand the agony of public and public trust him more. Kamal Kishore. Compassionate attitude during Uttarakhand floods 2013 led to public cooperation. ये देखो, जो हमने डिस्कस किया वो यहाँ आ गया. In cases of exclusion from ration card, scheme benefit, demolition drives, riots, tragedy, civil servant must exhibit compassion. तो आंसर की डायरेक्शन ही अलग. Goldman defines EI as means to understand the emotions and feeling of self and others, mediating one's relationship and motivating the people we are engaged with. चलो ठीक है. Not just limited to emotion. Moral dilemma, inhibitions, insecurity, objectivity of law, subjectivity of emotion. ये गैप आ जाता है, बहुत बढ़िया, कि objectivity of law, subjectivity of emotion. Old disabled lady not having ration card could be given benefit along with helping her to enroll at the ration card. Chetan Rathore IPS saying national anthem during crowd and public protest of NRC. अब ये अंदर से आया ये. That led to effective crowd management. Tejaswi Satpute managing Hooch distilleries and Arif Sheikh in आमचो पुलिस, आमचो बस्तर. तो हमारे पास भी एग्जांपल्स है दुनिया भर के. इन पर्सनल लाइफ EI कैन बी यूज. तो पर्सनल लाइफ ले आए, सिविल सर्वेंट्स ले आए. Understand various options and opinions. Friend with homophobia was taught about gender, not by outright dismissing his views. तो इसीलिए आप आसपास भी कोई नहीं समझ पा रहा है, हमारे साथ भी कोई नहीं समझ पा रहा है सिस्टम में, तो हम भी उसको धीरे धीरे इनिशिएट करते हैं, स्पेस देते हैं, इनकलकेट करते हैं. आज नहीं तो कल समझ में आएगा. एडम ग्रांट सेज मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स हैव हैपेंड ड्यू टू राइट एप्लीकेशन ऑफ EI एंड EQ. गजब. आप कोट मत करिए, ये तो लिख सकते हैं. चलिए, ट्रेडिशनल, वही बात, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ स्टेट लेड अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल वंस एक्शन, वही मैंने जो बोला. अब वर्च्यू नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. ट्रेडिशनल ये है टॉप डाउन वाले, कैग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लोक आयुक्त, लोकपाल, CBI, सेंट्रल विजिलेंस, पुलिस कमीशन. लेकिन इनएडिक्वेसी अगर बात करेंगे, बॉटम अप आ गई, सोशल ऑडिट आ गया, जैसे हमने बोला, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया. आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, मेघालय ने सोशल ऑडिट लेजिस्लेशन पास किया. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमने बात की, लेकिन ऐसे नहीं की. पीर रिव्यू की बात करते हैं, हमने की. मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूँ. व्हेन द गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप माई गवर्नमेंट MyGov.in पे लिखो, मन की बात हो रही है, उसके बाद आपका हर ऐप तैयार है, चाहे फिर आपका वो सिविल एविएशन वाला है, चाहे रेलवेज वाला है, आप ऑनलाइन उसी टाइम फटाफट से आप ट्विटर पे डालते हो तो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड करती है. तो और कैसे होगा. और पब्लिकेशन, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, इनिशिएटिव ऑफ PRI एंड अर्बन लोकल बॉडीज, पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर डेडिकेटेड डे फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, ऑडिटिंग, रिकॉर्डिंग. तो नशा चाहिए, जोश चाहिए. अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी एट द कोर इथोस ऑफ फंक्शनिंग टू अचीव गुड. So I think worth enough and lot of good ideas can be appreciated. So this is what we can say. Now you can share with me what all new takeaways and course correction we are going to do. So course correction would be in terms of like during the newspaper also doing it in a more relaxed manner, and when writing answers, so that should also be in the same direction only. Plus, writing in a more authentic way in terms Correct. of thinking. So ultimately, thinking is going to decide how we are writing. So I think that requires more improvement. Okay. This is all appreciated. Wonderful point. And we are going to move forward with all these ideas in our work profile. And this is a course which can only be making any headway where communication and authenticity and time bound work must be done. So let's continue further. Thank you very much.